Arya, Samir, can you people hear me? Okay. So the recording has started. You people can please put your attendance. Okay. So I think these two examples are remaining. Okay. So you can try them at home. And if you are unable to solve, then I'll solve it. We'll directly go to the Kramer's rule. Okay. What exactly is Kramer's rule? तो क्रैमर्स रूल क्या होता है देख लेते हैं हम यहाँ पे। आपकी जानकारी के लिए मैं फिर से एक बार बता दूं कि ये क्लास मैथ्स 2 का नहीं है, मैथ्स 1 का है। ओके। मैंने मैथ्स 2 इसलिए आपको मैथ्स 2 के नाम से इसलिए लिंक भेजी है ताकि आपको समझ में आए कि कौन से टीचर पढ़ाने वाले हैं। ओके। सो जब मैथ्स 1 का लिंक आपको आएगा, मोस्टली मंगलम सर विल बी टीचिंग यू। एंड जब मैथ्स 2 का आएगा तो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन हम अगले कुछ दिनों के लिए विल कंटिन्यू विद मैथ्स 1 ओनली। ओके। विल पुट असाइड मैथ्स 2 फॉर few days. I'll be taking 2 chapters as I told you before. Okay. So हम मैथ्स 2 में ही, सॉरी, मैथ्स 1 का ही डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम द लास्ट लेक्चर। ओके। So in the last lecture, we have almost completed this exercise 4.2. One or two questions are remaining, and those questions needs to be solved by you, or you just have to put your query or doubt in the Google Classroom. ठीक है। I'm not going to take each and every example. So two examples are remaining, last two examples. Try to solve them. If you are unable to solve, then I'll be solving that example. Now Cramer's rule. So first of all, मुझे आप दोनों से एक चीज पूछनी है, आर्या से भी और समीर से भी। कैन यू पीपल सॉल्व एनी डिटर्मिनेंट? अगर 3/3 का आपको डिटर्मिनेंट दिया जाता है, सो कैन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट? Yes or no? Put in the chat box. Can you calculate determinant? If you cannot calculate determinant, you cannot understand Cramer's rule. Okay. My voice is breaking. Is that the case with Samir also? Samir, तुम्हें भी मेरी voice break होते हुए आ रही है क्या? Samir, my voice is clear or not? Tell me. It looks like network is very good at my side. Okay, there isn't any issue at my side. Samir, can you hear me? Arya is saying that my voice is breaking. So I just want to know from you, Samir, can you hear me? Please respond in the chat box. No, it is clear. Okay. So I think my voice is getting delayed to you. Okay. So तुम्हें थोड़ा सा late मेरी voice सुनाई दे रही है. That's why you are replying this much late. Is it? Okay. So Arya, did you understand my question? What I was talking about? कैन यू सॉल्व द डिटर्मिनेंट? आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करना आता है क्या? समीर एंड आर्या, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। यू हैव टू क्विकली आंसर यस और नो। ओके। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए आंसर देने में। यस, समीर कैन सॉल्व। व्हाट अबाउट यू आर्या? डिड यू अंडरस्टैंड माय क्वेश्चन? Okay, Arya left the meeting. No, no problem. There's a network issue at her side, I think. Okay. So Samir, you can calculate the uh, determinant. That's very good. So Cramer's rule समझना इतना कुछ मुश्किल नहीं है. Okay. So Cramer's rule में देखिए क्या है. In linear algebra, Cramer's rule is an explicit formula for the solution of a system of linear equations in many variables. In previous class, we studied this with two variables. Our goal here is to expand the application of Cramer's rule to three equations in three variables unknowns. Variables are usually denoted by x, y, z. ओके। सो क्रैमर्स रूल क्या है कि एक लीनियर इक्वेशंस जो है उन्हें सॉल्व करने के लिए क्रैमर्स रूल का हम यूज करते हैं, उसमें डिटर्मिनेंट का भी यूज होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लीनियर इक्वेशंस क्या है ये तो आप लोगों को पता ही होगा, और उनके सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन है
या फिर 2 लीनियर इक्वेशन है, 3 लीनियर इक्वेशन है, नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, सो उन लीनियर इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस है दैट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स प्रेजेंट इन दैट लीनियर इक्वेशन. ओके, so let us suppose 3 variables are present like x, y, z. So how many equations are needed in order to get a unique solution? मतलब एक solution होना चाहिए. अगर हमें x, y, z का एक ही solution हमें चाहिए तो कितने equations हमारे पास होना जरूरी है? Did you understand my question? For example, अगर मैं आपको बताता हूँ, okay, there is a message from Arya. Sir, network problem is there from my side, so I am getting your voice delayed and messages are not being sent. Okay, no problem, Arya. Just listen to me. Okay, and if you are not able to understand me, then you please watch the YouTube video once I upload it. Okay, no problem. ठीक है. So मैं कहना क्या चाहता हूँ आप लोगों को ये समझने की कोशिश कीजिए. समीर, particularly you are in good network area. Okay, so let us see. सी, अगर मेरे पास मैंने एक इक्वेशन दे दिया आपको x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू लेट अस से 10. सो व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ x y z? x की वैल्यू 2 रख सकता हूं मैं, y की वैल्यू 3 रख सकता हूं, z की वैल्यू 5 रख सकता हूं, तो भी मेरा आंसर 10 आएगा. x की वैल्यू 5 रख सकता हूं, y की वैल्यू 1 रख सकता हूं, z की वैल्यू 4 रख सकता हूं, फिर भी मेरा आंसर 10 आएगा. मतलब कि कितने सॉल्यूशंस है इस इक्वेशन के लिए? फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आर देयर. कितने भी हम सॉल्यूशन इसके निकाल सकते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हैं? हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर? 3 वेरिएबल्स आर देयर. सो अगर 3 वेरिएबल्स है तो हमारे पास 3 इक्वेशंस अगर है, फॉर एग्जांपल 2x प्लस y प्लस 3z is equals to, let us say, we can say 20. Okay, and x plus 2y प्लस z is equals to 15. यानी कि देखो मैं बोलना क्या चाह रहा हूं ये समझने की कोशिश करो. इक्वेशंस कितने हैं मेरे पास? 3 इक्वेशंस है. वेरिएबल्स कितने हैं? 3 ही वेरिएबल्स है, 1 2 3. 3 वेरिएबल्स, 3 इक्वेशंस. अगर आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो इन इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा. यूनिक सॉल्यूशन यानी कि क्या? x की कोई तो एक वैल्यू रहेगी, एक फिक्स वैल्यू रहेगी, y की भी एक फिक्स वैल्यू रहेगी, z की भी एक फिक्स वैल्यू रहेगी. तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स है तो उस इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशंस रहते हैं. ओके, मतलब एक ही पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें मिलेगा. नाउ इफ आई इरेज ऑल दिस, ठीक है, अगर मैं एक इक्वेशन लिखता हूं इन 2 वेरिएबल्स तो मुझे बताओ कि कितने इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी मुझे? सी, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू, मैं अगर 5 रखता हूं, ओके, and if I put like 6x plus 9y is equals to 15 में रखता हूं तो देखो 2 इक्वेशंस है, 2 वेरिएबल्स है. दैट मीन्स इस इक्वेशन के भी x और y का कोई ना कोई तो यूनिक सॉल्यूशन आपको मिलेगा. तो ये यूनिक सॉल्यूशन में जो कहना चाह रहा हूं ये आपको समझ में आया? समीर, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? आर्या, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्वेशंस चाहिए, तब जाके उन उन इक्वेशंस के या फिर उन वेरिएबल्स के हमें यूनिक सॉल्यूशंस मिलेंगे. x की एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी, y की एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी और z की एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी. अभी इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत सारे टेक्निक्स है. ओके, सो वन ऑफ देम इज क्रैमर्स रूल. हम क्रैमर्स रूल का यूज कर सकते हैं. ठीक है, हाउ यू कैन यूज द क्रैमर्स रूल? सी, consider the following 3 linear equations in variables 3x y z. अभी x y z ये 3 वेरिएबल्स है और ये 3 इक्वेशंस है. जैसे कि मैंने आपको कहा था जितने वेरिएबल्स रहेंगे उतने ही इक्वेशंस रहेंगे, तभी हमारे जो सॉल्यूशंस है वो यूनिक आएंगे. ओके, now here ai, bi, ci and di are constants. so ai मतलब कि a1 b1 c1 d1, a2 b2 c2 d2, a3 b3 c3 d3, ये जो है ये कांस्टेंट्स है. तो एंड एक्स वाई जेड आर द वेरिएबल्स. तो इतना आपको समझ में आया? वेरी गुड. द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम of equations is x is equals to dx by d, y is equals to dx by d, z is equals to dx by d. अभी ये dx क्या है और d क्या है? d is nothing but डिटर्मिनेंट. अभी डिटर्मिनेंट कैसा डिटर्मिनेंट वो भी हम देखेंगे.
सी प्रोवाइडेड डी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। तो डी, डी यानी क्या है, डिटर्मिनेंट। तो ये जो कोएफिशिएंट्स है ना A1 A2 A3, ओके A1 A2 A3 हमने यहाँ पे लिख दिए, B1 B2 B3 हमने सेकेंड कॉलम में लिख दिए, एंड C1 C2 C3 हमने थर्ड कॉलम में लिख दिए। तो हमें क्या मिलेगा, एक डिटर्मिनेंट मिलेगा। इसे अच्छे से समझ लो, इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है, कंफ्यूजिंग थोड़ा सा है। ओके, तो ये हमारा डी मिल गया, डिटर्मिनेंट मिल गया। ठीक है, हमारा क्या मिल गया, ये मेन डिटर्मिनेंट मिल गया। अभी हम डी एक्स निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, डी एक्स। तो डी एक्स के लिए देखिए क्या करना है। अभी एक्स के कोएफिशिएंट्स क्या है, यहाँ पे एक्स के कोएफिशिएंट्स है A1 A2 A3, एक्स के कोएफिशिएंट्स है यहाँ पे A1 A2 A3। तो इस कॉलम की जगह पे, इस कॉलम की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, D1 D2 D3 लिखूंगा। मतलब A1 A2 A3 की जगह पे मैं D1 D2 D3 लिखूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, dx मिलेगा। सी एक्स का जो कॉलम था वो मैंने इस कॉलम से रिप्लेस कर दिया, जो इस इक्वल टू के साइन की राइट साइड में है ना, D1 D2 D3, तो उससे मैंने रिप्लेस कर दिया। सिमिलरली अगर मुझे dy निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, जो y के कोएफिशिएंट्स है B1 B2 B3, y के कोएफिशिएंट जो है dy निकलने के लिए मुझे y के कोएफिशिएंट को रिप्लेस करना है विथ D1 D2 D3, और बाकी के जो दो कॉलम है वो एज इट इज है A1 A2 A3 एंड C1 C2 C3। समझ रहे हो, मैंने क्या किया, यहाँ पे x का कॉलम चेंज कर दिया, बाकी दोनों कॉलम सेम ही है। बाद में y का कॉलम चेंज कर दिया, बाकी दोनों कॉलम सेम ही है। नाउ थर्ड वन dz अगर मुझे निकालना है तो मैंने z के कॉलम में क्या किया, D1 D2 D3 लिखा, एंड बाकी के जो दो कॉलम है वो एज इट इज रख दिए। तो मेरे पास क्या मिला, देखिए d मिला, dy मिला एंड dx मिला। सो अगर मुझे x, y और z की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, dx बाय डी करूंगा, तो डी डी कट जाएगा, बचेगा x। तो ये रहा d और ये रहा dx। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू को हम इससे डिवाइड करेंगे, इस d की वैल्यू से, तो क्या मिलेगा हमें, x मिलेगा। सिमिलरली अगर y निकालना हो तो dy बाय डी करेंगे, z निकालना हो तो dy बाय डी करेंगे। तो इस तरह से क्रेमर्स रूल वर्क करता है। नो जब हम एग्जांपल्स लेंगे तब आपको मोर क्लियरिटी आ जाएगी। बिफोर दैट हियर आर फ्यू रिमार्क्स अबाउट द क्रेमर्स रूल। You will find the proof of Cramer's rule in QR code. So you have to look for the QR code somewhere and you will find the Cramer's rule का जो प्रूफ है। मोस्टली मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में प्रूफ्स नहीं पूछे जाते हैं। ओके, ज्यादा प्रूफ्स नहीं पूछे जाएंगे, आपको एग्जाम्पल ज्यादा पूछे जाएंगे। सो यू जस्ट फोकस ऑन एग्जाम्पल्स मोर। Now, if d is equals to 0, then there is no unique solution for the given system of equations. तो d is equals to 0 क्या, कि हमारा जो ये पहला डिटर्मिनेंट रहेगा, इसकी वैल्यू अगर 0 आती है, for this determinant the value is 0, then we don't have any unique solution. तो हम क्या कहेंगे, नो यूनिक सोल्यूशन, ऐसा लिख देंगे वहां पे अगर d की वैल्यू 0 आती है तो। नो सॉल्व एग्जांपल देखिए। तो पहला एग्जांपल यहाँ पे दिया है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, एक्स प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 2। तो ये तीन लीनियर इक्वेशंस दिए हैं। अभी मैं लीनियर इक्वेशंस का इनका एक या तो यूनिक सॉल्यूशन रहेगा या फिर नो सॉल्यूशन रहेगा। यूनिक सॉल्यूशन क्यों रहेगा, क्योंकि तीन ही वेरिएबल है और तीन ही इक्वेशंस है। नो सॉल्यूशन क्यों हो सकता है, why no solution can be there, if the value of determinant d becomes 0, then these equation will not be having any solution। समझ रहे हो, तो ये दो कंडीशन है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट d। तो d कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो इसका इसके कोएफिशिएंट्स क्या है, 1 1 1, तो पहले रो में लिख दिए 1 1 1 बराबर। अभी दूसरा जो इक्वेशन है उसके कोएफिशिएंट है 1 -1 एंड +1, सो 1 -1 +1 लिख दिए। तीसरा जो इक्वेशन है उसके कोएफिशिएंट्स क्या है, 1 2 -1, तो 1 2 -1 यहाँ पे लिख दिया। तो मुझे दोनों बताइए आप कि डी किस तरह से हमने लिखा, ये समझ में आया क्या। अगर डी समझ में आ गया है किस तरह से लिखा, तो बाकी का तो सब कुछ आ जाएगा। आर्या एंड समीर, डिड यू अंडरस्टैंड हाउ वी रिटर्न द डिटर्मिनेंट डी, डी को किस तरह से लिखा, समझ में आया आप लोगों को। ओके, समीर इज बीइंग वेरी ऑनेस्ट। नो कहा समीर ने, नो प्रॉब्लम समीर, विल रिपीट इट। ठीक है, चलो आर्या, डिड यू अंडरस्टैंड हाउ आई रिटर्न द डी।
सी, ये जो इक्वेशन है ना ये साइड बाय साइड में लिखे तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो रहा है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 6 है, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 2 है, ओके, एंड एक्स प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल्स टू 2 है। मैंने अभी एक के नीचे एक लिख दिया। तो इसके कोएफिशिएंट क्या है, x का कोएफिशिएंट क्या है मुझे बताओ। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x? मैं इस लाइन की बात कर रहा हूं, क्या है? इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, बराबर, 1 इज देयर। सो पहला कॉलम 1 आएगा, 1 1 1, बराबर। सिमिलरली अभी देखो दूसरा, दूसरे कॉलम में देखो, दूसरे कॉलम में देखो, इस y का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, इसका -1 है और इसका 2 है। तो लिख दिया हमने, 1 लिख दिया इसके लिए, -1 लिख दिया इसके लिए, और 2 लिख दिया इसके लिए सेकंड कॉलम में। थर्ड कॉलम में z, z और माइनस z, तो -1 रहेगा, 1 1 माइनस 1 1 -1, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और यहाँ पे -1 है तो -1 लिख दिया। सी, यहाँ पे साइड बाय साइड में लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होना है ना आपको, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नॉट नेसेसरी कि वो हमें कॉलम में ही लिख के दे, वो ऐसे रो से भी लिख के दे सकते हैं ना। तो ध्यान रखना क्या है, देखो पहला जो इक्वेशन है, यस पहला जो इक्वेशन है उसके कोएफिशिएंट पहले रो में लिख दो, दूसरा जो इक्वेशन है उसके कोएफिशिएंट दूसरे रो में लिख दो, और तीसरा जो इक्वेशन है उसके कोएफिशिएंट तीसरे रो में लिख दो, दैट्स इट, ओके। तो ये जो इक्वल टू साइन के साइड में जो है वो रहेगा हमारा डी का रो, दैट इज रहता है ना, हमने लिखा था D1 D2 एंड D3 वो वाला। तो ये रो रहेगा 6 2 और 2, तो वो हम बाद में लिखेंगे, उसकी जरूरत फिलहाल नहीं है। हमने पहले डी लिख लिया एंड दैट इज इंपॉर्टेंट, ओके। नाउ डी को कैलकुलेट करना है, किस तरह से कैलकुलेट करना है, 1, दिस इज 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 इज 1, 1 माइनस 2, 2 इंटू 1 इज 2, सो 1 माइनस 2, सो -1 फिर से यहाँ पे आएगा, -1 मल्टीप्लाइड बाय -1, तो ये डिटर्मिनेंट आप निकाल लोगे, इसकी वैल्यू 4 आएगी। ये मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ओके। ये सिंपल डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू आपको निकालना आते निकालते आना ही चाहिए, ओके। सो डी की वैल्यू हमें 4 मिल गई। नाउ व्हाट इज आवर नेक्स्ट स्टेप, dx, dx निकालना है। तो dx में देखो x का जो रो है, सॉरी x का जो कॉलम है, दिस इज द कॉलम फॉर x, दिस इज द कॉलम फॉर y, दिस इज द कॉलम फॉर z, यू नो दैट। सो इस कॉलम को हमें किससे रिप्लेस करना है, d1 d2 d3 से। सो d1 इज 6, d2 इज 2 एंड d3 इज 2। सो 6 2 2 लिख दिया मैंने, इस 1 1 1 की जगह पे 6 2 2 लिख दिया। बाकी का मैंने एज इट इज रखा, 1 की जगह 1, -1 की जगह -1, 2 की जगह 2, -1, सॉरी 1 1 -1 1 1 माइनस। तो इस तरह से मैंने dx भी लिख दिया। डिड यू अंडरस्टैंड dx? dx समझ में आया किस तरह से dx लिखा? सिर्फ x के जो कोएफिशिएंट थे उसके जगह पे रिप्लेस करके मैंने 6 2 और 2 लिख दिया, तो ये हो गया। dx की बे हमने कैलकुलेट कर लिया तो वो भी 4 ही आया। dx किस तरह से कैलकुलेट करना है वो भी आपको पता है, यू कैन कैलकुलेट dx आल्सो, दैट इज आल्सो 4। सिमिलरली dy में क्या किया हमने, ये जो d हमारा बना है ना, इस d में हमको ये जो रो है y का रो, सॉरी y का कॉलम है, इसे रिप्लेस करना है, बाकी सब एज इट इज रखना है। तो 6 2 2 मैंने रख दिया y के रो में, एंड बाकी के जो दो रो थे, सो कॉलम थे, ये वाला और ये वाला मैंने एज इट इज रख दिया। एंड आई ऑल्सो कैलकुलेटेड dy एंड इट केम एज 8, ये 8 आया। और dz भी इसी तरह से कैलकुलेट किया। थर्ड कॉलम हमने चेंज कर दिया 6 2 2 से, बाकी के दो कॉलम जो है वो एज इट इज रहेंगे। फ्रॉम दिस डिटर्मिनेंट, रिमेंबर d से हम चेंज कर रहे हैं, dx और dy का यहाँ d और dz के साथ में कोई भी लेना देना नहीं है, ओके। नाउ dz भी कैलकुलेट कर लिया 12। सो x आएगा dx by d, that is 4 by 4 is equals to 1, y आएगा dy by d is equals to 8 by 4 is equals to 2, and z आ जाएगा dz by d, that is 12 divided by 4 is equals to 3 are the solution of the given equation. So x is equals to 1, y is equals to 2 and z is equals to 3 is the solution, use the unique solution for these equation। अभी हमारा जो कैलकुलेशन है या फिर हमारे जो आंसर्स है वो सही है या नहीं है, ये हमें क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा। x की वैल्यू 1 आ रही है, y की वैल्यू 2 आ रही है, z की वैल्यू 3 आ रही है। So whether these values are true or false, we have to check, okay? So just give me few seconds, I will be back. Okay,
सो वी विल वेरीफाई दैट हमने जो वैल्यूज कैलकुलेट की है वो वैल्यूज ट्रू है या फिर नहीं। एक्स की वैल्यू 1, वाई की 2 एंड जेड की क्या आई 4 आई। सो एक्स इज 1, वाई इज 2 एंड जेड इज 4। 4 प्लस ओके, जेड इज 3 ना, 3 है जेड, मुझे बता भी नहीं रहे हो तुम लोग। ठीक, एक्स इज 1, वाई इज 2, जेड इज 3। 1 प्लस 2 इज 3, 3 प्लस 3 इज 6। x is 1, y is minus 2 and z is 3. So see, 1 minus 2 is minus 1, minus 1 plus 3 is 2. So इन इक्वेशन में आप आई हुई जो x y z की वैल्यूज हैं वो पुट कर सकते हो और वेरीफाई कर सकते हो। अगर आपकी वैल्यूज वेरीफाई हो रही है दैट मींस योर कैलकुलेशंस आर करेक्ट एंड यू हैव गॉट द करेक्ट सॉल्यूशन। तो आपने जो सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है वो तीनों इक्वेशन जो है ये तीनों इक्वेशन को इसने सेटिस्फाई करना चाहिए। It should satisfy all three equations. Okay. Now similarly, देखो यहाँ पे by using Cramer's rule solve the following linear equations। तो ये linear equations यहाँ पे दिए हैं, तो आप इस तरह से इन्हें लिखेंगे एंड x की कोएफिशिएंट लिखेंगे 1 8 -4 लिख दिए यहाँ पे 1 3 -1। ओके, इट शुड बी -1 ना, यहाँ पे जो +1 दिया है ना, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी -1। करेक्ट दिस मिस्टेक। अगर यहाँ पे या फिर यहाँ तो माइनस होना होना चाहिए या फिर यहाँ पे प्लस होना चाहिए, ये दोनों में से कहीं पे तो प्रिंट मिस्टेक है, तो वो आप वेरीफाई कर लीजिए। ओके, सो यहाँ पे प्लस होना चाहिए, अगर यहाँ पे प्लस नहीं है ये सही है, तो यहाँ पे -1 होना चाहिए। समझ रहे हो मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ ये समझ में आपको आना चाहिए। नाउ थर्ड कॉलम -1 -6 3 -1 -6 3 डी कैलकुलेट कर लिया, वो आया -1, डी का वैल्यू -1 आया। उसी तरह से डी एक्स कैलकुलेट करना है, तो पहले कॉलम को हम क्या करेंगे, पहले कॉलम को हम रिप्लेस करेंगे इस कॉलम से। सी 1 1 1 कर दिया, तो ये -1 देखिए यहाँ पे 1 3 -1 है ना, तो यहाँ पे 1 3 -1 यहाँ पे करेक्ट लिख दिया है, मतलब कि ये जो डी है ना यहाँ पे -1 होना चाहिए। आप अपने बुक में करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे -1 होना जरूरी है, ये सही है, यहाँ पे माइनस ही है, यहाँ पे -1 यहाँ पे करेक्टली दिया है। तो डी एक्स कैलकुलेट किया -2 आया, डी वाई कैलकुलेट किया -3 आया, और डी जेड इसी तरह से कैलकुलेट किया -4 आया। तो एक्स की वैल्यू आई 2, वाई की वैल्यू आई 3 एंड जेड की वैल्यू आई 4। सो एक्स इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 3, जेड इज इक्वल टू 4 are the solution of the given equations. Okay, so I hope you understand the Cramer's rule perfectly. Please let me know in the chat box. Any confusion, doubt? Shall I revise or shall I move further? No doubt. Okay. ओके, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसका, तभी जाके आप इसमें मास्टर्स बनोगे। ओके, ओके गुड। सो देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा अलग इक्वेशन दिया है, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल्स टू -2, 1/x माइनस 1 2/y प्लस 1/z इज इक्वल्स टू 3, 2/x माइनस 1/y प्लस 3/2। 3/2 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 3/z होना चाहिए। ओके, ये प्रिंट मिस्टेक भी कितने हुए हैं बुक में, यहाँ पे 3/2 नहीं है। ओके, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 3/z होना चाहिए। सो इज इक्वल्स टू -1। ये तीसरा इक्वेशन हमारा यहाँ पे दिया है, यहाँ पे z है, ध्यान में रखो। तो अभी इसके कोएफिशिएंट अगर आपको निकालने हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ओके, x का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, समझ लो, x का कोएफिशिएंट 1 नहीं है। 1x अगर रहेगा तो हम कह सकते हैं कि x का कोएफिशिएंट 1 है, लेकिन 1/x है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि x का कोएफिशिएंट 1 है, तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, वी नीड टू कन्वर्ट इट। तो किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, पुट 1/x इज इक्वल्स टू p, 1/y इज इक्वल्स टू q एंड 1/z इज इक्वल्स टू r। तो हमें नए 3 इक्वेशन मिल गए। ओके, p प्लस q प्लस r इज इक्वल्स टू -2, p माइनस 2q प्लस r इज इक्वल्स टू 3 एंड 2p माइनस q प्लस 3r इज इक्वल्स टू -1। ये 3 इक्वेशंस मिल गए। अब ये 3 इक्वेशंस तो इजी है सॉल्व करने के लिए, बराबर, ये 3 इक्वेशंस सॉल्व करने के लिए इजी है।
तो हमें क्या मिलेगा, हमें P Q एंड R की वैल्यूज मिलेगी। समझ लो यहाँ पे हम यहाँ पे dx की जगह पे dp कैलकुलेट कर रहे हैं, समझ रहे हो, dp कैलकुलेट कर रहे हो। तो ये चेंज थोड़ा सा समझने की कोशिश करो आप। सी यहाँ पे हमने एक कॉलम मैट्रिक्स लिख लिया, सॉरी कॉलम लिख लिए इस डिटर्मिनेंट में, 1 1 2 1 1 2, 1 - 2 - 1, 1 - 2 - 1, 1 1 3 1 1 3 लिख दिया। उसी तरीके से हमने डी कैलकुलेट कर लिया। अभी डीपी कैलकुलेट करना है तो डीपी में हमको क्या करना पड़ेगा, जो पी वाला कॉलम है वो कॉलम इससे रिप्लेस करना पड़ेगा, 2 - 2 3 - 1 से। सो -2 3 - 1 यहाँ पे लिख दिया हमने। पी के कॉलम में क्यू का और आर का जो कॉलम है वो एज इट इज है। इसी तरह से डी क्यू में हम क्यू का कॉलम चेंज करेंगे, पी का और आर का कॉलम एज इट इज रहेगा। डी क्यू कैलकुलेट कर लिया, सिमिलरली डी आर कैलकुलेट कर लिया। नो डीपी डी क्यू डी आर हमारे पास है और डी भी हमारे पास है। तो हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट द वैल्यूज ऑफ पी क्यू आर। अभी पी की वैल्यू है 5/3, क्यू की वैल्यू है -5/3 एंड आर की वैल्यू है -2। सो दीज आर नॉट द फाइनल वैल्यूज। हमने क्या किया था, हमने एज्यूम किया था 1/x इज इक्वल टू पी, दैट इज 3/5/3 है। तो x की वैल्यू बनेगी 3/5। उसी तरह से हमें y की वैल्यू मिलेगी -3/5 और z की वैल्यू मिलेगी -1/2। ओके, तो हमें क्वेश्चन पूछा गया है x y z के वेरिएबल में, तो हमें आंसर भी किस में लिखना है, x y z के वेरिएबल में। हम यहाँ पे x y और z के कोएफिशिएंट्स जो है वो इजीली फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे, इसके लिए हमने इस इक्वेशन को पी क्यू आर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया and we find out the value of PQR, and again we replace the values of PQR with the values of X, Y, Z, and we got the solution like this. Okay, so this is how we will go. तो यहाँ पे देखो क्या करना होता है, यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम दिया है, द कॉस्ट ऑफ 2 बुक्स 6 नोटबुक्स एंड 3 पेन्स इज 120, द कॉस्ट ऑफ 3 बुक्स 4 नोटबुक्स एंड 2 पेन्स इज 105, while the cost of 5 books 7 notebooks and 4 pens is 183. Using this information find the cost of 1 book 1 notebook and 1 pencil, sorry 1 pen. तो ये वर्ड प्रॉब्लम दिया है, तो इसे हमें इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करते आना चाहिए। ओके, सो किसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो, let us suppose the price of one book is x, price of notebook is y, and price of pen is z. okay, तो 2x यानी कि 2 बुक्स की कीमत प्लस 6 नोटबुक्स की कीमत प्लस 3 पेन्स की कीमत, तो कितना हुआ 3z इज इक्वल टू कितनी है 120 है। यह एक इक्वेशन बना मेरा। सिमिलरली दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, 3x plus 4y plus 2z is equals to 105 and 5x plus 7y plus 4z is equals to 183। तो ये 3 इक्वेशंस बन गए, देख लो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये 3 इक्वेशंस आपको मिल गए, तो x y z की वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करनी है वो आपको अच्छे से मालूम है। And when once you find out the value of x, y and z, then you just have to write like this कि value of one book is this, value of one notebook is this much, and the price or cost of one pen is this much। तो x y z की हम यहाँ पे वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। सी मिल गई हमें वैल्यूज, x की वैल्यू है 15, y की वैल्यू है 12 एंड z की वैल्यू है 6। तो ये इस तरह से हमें आंसर लिखना पड़ेगा इन वर्ड में, मतलब वर्ड में हमें क्वेश्चन दिया है तो वर्ड फॉर्म में ही हमें आंसर भी लिखना पड़ेगा। RS15, RS12, RS6 आर द कॉस्ट ऑफ वन बुक, वन नोटबुक एंड वन पेन रिस्पेक्टिवली। ओके, तो वर्ड प्रॉब्लम है, समझ में आना चाहिए हमें कि ये क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है। ओके, सो दैट आपको अच्छे से मार्क्स मिल सकते हैं बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। नाउ the new theorem that is we are going to see, first of all we see consistency of three equations in two variables। see consistency of three equation in two variable। अभी यहाँ पे इक्वेशन कितने हैं, 3 है, लेकिन वेरिएबल कितने हैं, 1 2 1 2 1 2, x and y, two variables are there, three equations are there, so these three equations are said to be consistent if they have a common solution। मतलब कि अगर इन तीनों में कोई एक कॉमन सॉल्यूशन है। अभी देखो मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि 3 इक्वेशंस हैं तो वेरिएबल भी 3 होने चाहिए, तो उससे क्या होगा,
कि आपको एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब कि वही सॉल्यूशन काम करेगा, बाकी कोई सॉल्यूशन काम नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे देखो वेरिएबल कितने हैं, 2 है, और इक्वेशंस कितने हैं, 3 है। तो इस केस में क्या होता है पता है, इस केस में आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे। क्या मिलेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे फॉर ईच इक्वेशन, मतलब कि एक्स और वाई की ऐसी कई सारी वैल्यूज होंगी जिनके के लिए ये तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई होंगे। इनके लिए कोई एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, लेकिन इन तीनों के लिए एक कॉमन सॉल्यूशन रहेगा। क्या रहेगा, एक कॉमन सॉल्यूशन रहेगा। और अगर इन तीनों के लिए एक कॉमन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, देन वी से दैट दीज थ्री इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। समझ में आया, ये जो मैंने स्टेटमेंट कहा वो समझ में आया कि इस एक्स और वाई के लिए कोई वैल्यू रहेंगी, अलग अलग वैल्यूज रहेंगी। एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की 5 रहेगी, एक्स की 2 है, वाई की 7 रह सकती है, वॉट एवर इट मे बी। एक्स और वाई की न्यूमरस वैल्यूज इसके लिए रहेगी, एक्स और वाई की वैल्यू कुछ वैल्यूज इसके लिए रहेंगी, और एक्स और वाई की वैल्यू अलग अलग वैल्यूज कुछ इसके लिए रहेंगी। ओके, इन तीनों के लिए अगर कोई कॉमन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई आर देयर, देन दीज थ्री इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ऐसा कहा जाता है। एक बात पक्की समझ लो कि इस इन तीन इक्वेशन के लिए एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। यूनिक सॉल्यूशन क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि वेरिएबल्स 2 है, इक्वेशंस 3 है, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। नंबर ऑफ वेरिएबल्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशंस टू गेट अ यूनिक सॉल्यूशन, लेकिन कॉमन सॉल्यूशन मिल सकता है। सी डिफरेंस बिटवीन कॉमन सॉल्यूशन क्या है, देखो अभी मैं आपको एक बताता हूं इक्वेशन 2x प्लस 3y प्लस नॉट z, ओके 2 is equals to 0. Similarly 6x plus y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देखो इसमें क्या क्या कर सकते हैं हम, x की वैल्यू क्या आएगी, फॉर एग्जांपल वी पुट x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 रख दी हमने, तो ये क्या हुआ 2 हुआ, और ये 2 अगर इधर जाता है तो -2 यानी कि y की वैल्यू हमें मिलेगी 0। y की वैल्यू क्या मिलेगी, हमें 0 मिलेगी। x की वैल्यू जब हम 1 रख रहे हैं तो y की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। अगर x की वैल्यू आप 0 रखते हो, x की वैल्यू 0 रखते हो तो क्या मिलेगा, देखो x की वैल्यू 0 रखोगे, व्हेन यू पुट x की वैल्यू 0 देन यू विल गेट y इज इक्वल्स टू 2/3। बराबर, मतलब यह एक सॉल्यूशन हुआ, x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 2/3, यह एक सॉल्यूशन हुआ। ऐसे ही आप अलग अलग सॉल्यूशन इसके प्राप्त करेंगे इस इक्वेशन के लिए। आप x की कोई भी एक वैल्यू रखो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2 रख देता हूँ, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 4 एंड 4 प्लस 2 इज 6, सो 6 गोज हियर एंड दिस 3 गोज हियर, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, -2 मिलेगी। मतलब x की वैल्यू जब आप 2 रखोगे तो y की वैल्यू में क्या मिलेगी मुझे, 2 मिलेगी। तो ये तीन सॉल्यूशन मिल गए मुझे, 1 2 3 सॉल्यूशन मिल गए फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहा हूं। उसी तरीके से इस इक्वेशन के लिए भी कुछ सॉल्यूशंस मुझे भी मिलेंगे, लेकिन अगर कोई कॉमन सॉल्यूशन दोनों में है, मतलब x और y की वैल्यू कॉमन है, तो हम कहेंगे कि ये दो इक्वेशन या फिर तीन इक्वेशन कंसिस्टेंट है। तो जब हम एग्जांपल्स लेंगे तो आपको मोर क्लैरिटी आ जाएगी, लेकिन मैंने मेरे हिसाब से ज्यादा ब्रीफ करने की कोशिश की है। आई डोंट नो वेदर यू अंडरस्टैंड इट और नॉट। ओके, सो थ्योरम क्या है, ax a1x plus b1y plus c1 is equals to 0, a2x plus b2y plus c2 is equals to 0, a3x plus b3y plus c3 is equals to 0, to be consistent is this determinant should be equal to 0। मतलब कि जब हम इनका कोएफिशिएंट डिटर्मिनेंट निकालेंगे ना, a1 को यहाँ पे रख दिया, a2 को यहाँ पे, a3 को यहाँ पे, इस तरह से इसका डिटर्मिनेंट बना के जब हम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, वो वैल्यू अगर 0 आती है तब हम कहेंगे कि दीज थ्री इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। यही थ्योरम है, आपको ध्यान में रखना है। दिस इज द थ्योरम दैट यू नीड टू रिमेंबर। ओके, सो इस थ्योरम का प्रूफ हम नहीं देखेंगे क्योंकि इसकी जरूरत मुझे नहीं लगती है। ओके, सो वी विल जस्ट क्विकली गो टू द एग्जाम्पल। नाउ सी, यहाँ पे तीन इक्वेशंस हमें दिए हैं एंड दे आर आस्किंग अस टू वेरीफाई द कंसिस्टेंसी ऑफ
फॉलोइंग इक्वेशन। तो अगर आप इस इक्वेशन को देखेंगे तो ये प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, दीज आर नॉट इन प्रॉपर फॉर्म। जिस तरह से हमने पढ़ा है उस फॉर्म में इन्हें हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। सी 2x प्लस 2y प्लस कुछ तो होना चाहिए ना। सी इस इक्वेशन को मैं कैसे लिखूंगा, 2x प्लस 2y प्लस 2, ये जो 2 है -2 ये यहां पे आ गया तो +2 बना, और इज इक्वल टू 0, मतलब इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में आपको ये दोनों इक्वेशन भी लिखने पड़ेंगे। ठीक है, ये पहला इक्वेशन मैंने लिख दिया, ये दोनों इक्वेशन भी आप इसी फॉर्म में लिखेंगे। ये जो 1 है यहाँ पे आके क्या बनेगा, +1 बनेगा, मतलब x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये -5 जो है यहाँ पे आके +5 बनेगा, सो 3x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये 3 इक्वेशन हमें मिल गए। तो 3 इक्वेशन मिल गए। तो पहले इक्वेशन को पहले रो में रख दो 2 2 2, देखो मैंने रख दिया 2 2 2, पहले रो में रख दिया। दूसरा जो इक्वेशन है वो क्या है, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, मैंने लिखा नहीं है लेकिन आप समझ लो, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। तो तीनों के कोएफिशिएंट क्या आएंगे, 1 1 1 आएगा, तो मैं यहाँ पे 1 1 1 लिख दूंगा। ये 5 इधर आएगा, जैसे कि मैंने कहा था 3x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है, सो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 3 3 5 लिखूंगा। तो ये सब मैंने लिख दिया, एक मैंने डिटर्मिनेंट बना लिया। अभी क्या करना है मुझे, फाइंड आउट करना है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो अगर आप इस डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करोगे तो ये 0 आएगा, ये डिटर्मिनेंट 0 आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, बट द इक्वेशंस हैव नो बट द इक्वेशंस हैव नो कॉमन सॉल्यूशन। देखो ये डिटर्मिनेंट 0 भी आया, लेकिन इसके लिए कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। तो ये आप क्या करेंगे, घर पे जाके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इक्वेशन की, एक्स और वाई की हमें क्या क्या वैल्यूज मिलेगी। तो आपको समझ में आएगा कि ये जो इक्वेशन है, सी दिस इक्वेशन इज इक्वल टू दिस इक्वेशन, दोनों इक्वेशन सिमिलर ही है। समझ रहे हो, ये दोनों इक्वेशंस कैसे हैं, सिमिलर ही है, ये चेंज नहीं है इनमें। सो दीज टू रोज आर बिकमिंग इक्वल। तो दो रो अगर इक्वल है तो उसका मतलब क्या होता है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। सो ये दो इक्वेशन एक्चुअल में दो ना होके ये एक ही है, इसके लिए इनमें कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं रहेगा। ओके, इसके लिए इनमें कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं रहेगा। तो पहले आपको काम क्या करना है, पहले कंसिस्टेंसी फाइंड आउट करने के लिए ज्यादा मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस लेने की जरूरत नहीं है। पहले इन इक्वेशन को प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में एक डिटर्मिनेंट बना लो, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करो। अगर उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है, सो दीज इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, and if the value is not equals to 0, then these equations are not consistent. Okay, yes, ठीक है, ये पहला एग्जांपल समझ में आया, बताओ सब लोग, दोनों दोनों भी चैट में। चलो समीर आर्या बताओ चैट बॉक्स में, आप लोगों को समझ में आया या फिर नहीं, कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। ओके बताया तुम लोगों ने, ओके सॉरी आई डिडंट सी, जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स। ओके, सो एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन, इनको भी प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हुआ इनका प्रॉपर फॉर्म। प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में इनका एक आप मैट्रिक्स बना लो, डिटर्मिनेंट बना लोगे, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी, तो क्या कहेंगे हम, गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ओके, सिमिलरली थर्ड है यहाँ पे, उसमें इसमें भी -60 वैल्यू आ रही है विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। थर्ड जो हमारा प्रॉब्लम है उसके लिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आ रही है, दैट इज कमिंग -60, सो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज नॉट कंसिस्टेंट। ठीक है, इस तरह से हम कंसिस्टेंसी चेक करते हैं फॉर द गिवन इक्वेशंस। नाउ लेट मी जस्ट जूम आउट एंड सी।
ओके, सो एग्जाम्पल थर्ड वी कैन टेक। ओके, तीसरा एग्जाम्पल हम लेंगे, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल मुझे लग रहा है। सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, देखो हमने इसे प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। देखो प्रॉपर फॉर्म जो मैं बोल रहा हूं, ये 7x माइनस के वाई इज इक्वल टू 4 है ना, तो इसे आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा टू चेक द कंसिस्टेंसी। 7x माइनस के वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमने तीनों इक्वेशन को प्रॉपर फॉर्म में लिख लिया, इनका एक डिटर्मिनेंट बना दिया, और हमने डायरेक्टली जीरो लिख दिया। वाई जीरो लिख दिया बिकॉज दे आर कंसिस्टेंट। बोला गया है हमें यहाँ पे क्वेश्चन में ही क्या कहा गया है कि इफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और उन्होंने पहले ही बता दिया है कि ये जो तीन इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है। तो क्या करेंगे, आप यहाँ पे जीरो रखेंगे, डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे जीरो रख के, तो एक बीच में एक वेरिएबल के रहेगा, सी के रहेगा। सो आखिर में हम सब कुछ कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमें के की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 185/2। okay, so this is very easy, I think, to calculate, so we'll not waste much of a time. Area of a triangle and collinearity of 3 points. Now अगर हमें किसी ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना है, तो ये लेट अस सपोज थ्योरम क्या कहता है, इफ a is x1 y1, b is x2 y2, c is x3 y3 are vertices of triangle abc, then the area of triangle is x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, 1/2 multiplied, so this is the area। कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो देख लो, यहाँ पे ये पहला वर्टेक्स है, ये दूसरा वर्टेक्स है, ये तीसरा वर्टेक्स है। तो हमें क्या करना है, x1 रखेंगे यहाँ पे, y1 रखेंगे यहाँ पे, x2 रखेंगे यहाँ पे, y2 रखेंगे यहाँ पे, x3 यहाँ पे, y3 यहाँ पे, और जो तीसरा कॉलम है, तीसरे कॉलम में हम क्या रखेंगे, तीसरे कॉलम में कुछ भी नहीं रखेंगे, 1 1 1 रखेंगे, और 1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे। इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू रहेगी दैट विल बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। तो इसका भी हम एग्जांपल जब लेंगे तब आपको समझ में आएगा। सो इसके लिए कुछ रिमार्क्स हैं, देख लेते हैं। एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, वी नो दैट, हेंस वी ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। मतलब इन केस अगर हम जब ये कैलकुलेट कर रहे हैं डिटरमिनेंट, ये डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते वक्त इन केस अगर हमारी वैल्यू नेगेटिव भी आती है तो भी हमें उसे पॉजिटिव ही कंसिडर करना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज एरिया इज अ क्वांटिटी विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, which is always positive. Area cannot be negative, isn't it? Now, second is, if area is given, consider both positive and negative values of the determinant for calculation of the unknown coordinates. तो मतलब कि अगर आपको एरिया ऑलरेडी दिया है और आपको कोई अननोन वैल्यू निकालनी है, तो उस अननोन कोऑर्डिनेट की हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज को कंसीडर करना पड़ेगा। कैसे, मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। ओके, सो अगर मैं आपको पूछूंगा कि व्हाट इज 7 स्क्वायर, व्हाट इज 7 स्क्वायर, तो आपका आंसर क्या रहेगा? 7 का स्क्वायर क्या है? 7 स्क्वायर का है समीर एंड आर्या 49। वेरी गुड, 49 में लिख देता हूं यहाँ पे। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट ऑफ 49? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट ऑफ 49? 7 है। मैं कहता हूं -7 भी है, गलत है? -7 भी तो है ना। 7 का स्क्वायर भी 49 ही होता है, और -7 का स्क्वायर भी 49 ही होता है, बराबर। सो रूट ऑफ 49 विल बी +or -7। सिमिलरली यहां पे भी है, देखिए, मतलब अगर आपका कुछ क्या, कुछ जो कोऑर्डिनेट्स है वो नेगेटिव है, तो भी हम जो है वो स्क्वायर जो है वो हम पॉजिटिव ही लेते हैं ना ऑलवेज, तो हमें यहाँ पे एरिया पॉजिटिव ही लेना है। लेकिन अगर हमें एरिया पॉजिटिव दिया है, मतलब हमारा स्क्वायर पॉजिटिव था, 49 वाज पॉजिटिव, हमें क्या कैलकुलेट करना था, एक कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना था, दैट इज 7, रूट ऑफ 49 कैलकुलेट कर रहा था ना मैं। तो हम क्या कर रहे थे, +7 भी कंसीडर कर रहे थे, वो -7 भी कंसीडर कर रहे थे। इसी तरीके से जब हम कैलकुलेट करते हैं कोऑर्डिनेट, फॉर एग्जांपल हमारे x के लिए वैल्यू कुछ आती है 3,
जब हम कैलकुलेट करते हैं तो x की वैल्यू मान लीजिए कि हमारे आती है 3, तो हमें सिर्फ 3 कंसिडर करके नहीं चलना है, हमें क्या करना है 3 इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस 3 करना है, x इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस 3 कंसिडर करना है ऑलवेज फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया। ठीक है, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0 देन द गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर यानी कि क्या, एक ही लाइन में है। अगर तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में है ना तो ये ट्रायंगल बनेगा और ना ही इसका कोई एरिया होगा, दैट मीन्स इसका एरिया क्या होगा, 0 होगा। तो इफ area of triangle is 0 then the given 3 points are collinear, and if this determinant is 0 that means the area is 0, that means the points are collinear. So this was the theorem for collinearity of 3 points as well as area of triangle. ठीक है, तो इतना कुछ हमने इस क्लास में सीखा है। 3 चीजें हमने सीखी है। क्या क्या सीखी है? पहली चीज क्रैमर्स रूल सीखा है हमने, उसको रिवाइज करना है आप लोगों को। सेकेंड थिंग वी हैव लर्न दैट द कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस, कंसिस्टेंसी बराबर तीन इक्वेशन दिए रहते थे, 2 वेरिएबल होते थे। एंड थर्ड थिंग वी हैव लर्न दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। ओके, तो ये 3 चीजें रिवाइज करेंगे आप बिफोर कमिंग टू द नेक्स्ट क्लास। एंड इस पे जो एग्जांपल्स हैं वो एग्जांपल्स हम नेक्स्ट क्लास में ही लेंगे। Okay, so I hope you were able to understand 3 of the concepts that we have learned today, and if you have any kind of doubt then you can refer the YouTube video for this particular lecture. Okay, so chalo, with this I would like to say you bye bye, and we'll meet you in the next class. Chalo, thank you and bye bye.